Hello students, I hope you all are fine, fit and enjoying the studies. And as we are studying about the Unit 7, Class 12 Chemistry, chapter name is the P block elements. Today we'll discuss about the topic ammonia. Means in class 12 NCERT chemistry subject unit 7 is the P block elements, and in that P block elements we have already discussed about general properties of group 15 elements, chemical properties of group 15 elements, physical properties of group 15 elements, and we have also discussed about the preparation, properties and uses of nitrogen. Our next topic from the same chapter is ammonia. So let us first get introduced with ammonia. What is ammonia? Ammonia is compound of nitrogen and hydrogen, and its chemical formula is NH3. And if we talk about the structural formula of ammonia, then structural formula of ammonia is that it is trigonal pyramidal. Its shape is trigonal pyramidal, and there are 3 hydrogen atoms are bonded to central nitrogen atom by mean of single bonds, and 1 lone pair remains unbonded, means 1 pair of electron remain unbonded. We can depict, we can show the structure of nitrogen in this way also. This is central nitrogen atom which has 5 electrons of its own. In that 5 electrons, 3 electrons are shared with 3 different hydrogen atoms, and 1 pair of electron remains unpaired, means this does not take part in bonding. So finally we have here that hydrogen atoms are bonded with nitrogen atoms by mean of single bond, 3 hydrogen atoms, and there is 1 lone pair of electron. And this is because of presence of lone pair of electrons, there is distortion in shape. जैसा कि आप जानते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर. सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लोन पेयर के बीच में होता है, और उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है, और फाइनली सबसे कम जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर के बीच में होता है. तो क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, उस बॉन्ड पेयर की वजह से अमोनिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टार्टेड है, प्लेन ना होकर के इसमें डिस्टार्शन है, और इसलिए ट्राइगोनल शेप एक्वायर कर लेता है. तो फाइनली ये है कि अमोनिया जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, जिसका केमिकल फार्मूला है NH3, और अगर इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में नाइट्रोजन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम्स सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, और एक पेयर नाइट्रोजन का 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर होता है, और उसी लोन पेयर की वजह से क्या होता है, ये डिस्टॉर्टेड शेप में होता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है वो कहाँ पे होता है, नाइट्रोजन बिल्कुल एपेक्स पे होता है. ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एपेक्स पे होता है और हाइड्रोजन एटम्स उससे नीचे होते हैं बॉन्डिंग में, और टॉप पे क्या होता है, लोन पेयर होता है. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये कंपाउंड है, और इसके बारे में हम जो स्टडीज करेंगे उसमें है प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर इट, व्हाट आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. अबाउट दीज थिंग्स वी विल स्टडी. तो लेट अस स्टार्ट विथ प्रिपरेशन. वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमोनिया इज, it is synthesized from urea, means ammonia is synthesized, ammonia is prepared from urea. This is how it is when urea is hydrated when treated with water. NH2CONH2 यूरिया की रिएक्शन होती है वाटर से, तो ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट.
means when urea is treated with water, it forms ammonium carbonate NH4 twice CO3, and finally ammonium carbonate decomposes into ammonia, carbon dioxide and water. So this is one method of preparation from यूरिया. मीन्स अमोनिया का सिंथेसिस यूरिया से होता है, जिसमें यूरिया के रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और उस अमोनियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम अमोनियम साल्ट्स, यानी अमोनियम साल्ट से भी यूरिया की सिंथेसिस होती है. इन विच फर्स्ट एग्जांपल इज अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम NH4Cl. व्हेन NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड is treated with calcium hydroxide, then it forms ammonia, water molecule and calcium chloride salt. यानी कि अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम की. तो when ammonium chloride is treated with slagged lime, it gives out ammonia, water and calcium chloride. Another is from ammonium, means ammonium sulfate. When ammonium sulfate it is treated with caustic soda, means sodium hydroxide, then it produces ammonia, water, sodium sulfate. And third method is industrial method, means this is the method by which ammonia is synthesized, ammonia is produced on large scale. यानी कि ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया की सिंथेसिस जब होती है तो वो इस प्रोसेस से होती है. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए अमोनिया का सिंथेसिस इसी मेथड से किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसको कहा जाता है. तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अमोनिया की सिंथेसिस होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 700 केल्विन टेम्परेचर पर आयरन ऑक्साइड मीन्स Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना Al2O3 और पोटेशियम ऑक्साइड मीन्स इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम ट्रीट करते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और हीट एनर्जी इवाल्व होती है 46.1 किलो जूल पर मोल. मीन्स इंडस्ट्रियल मोड में, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए या लार्ज स्केल में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है. कैसे? फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अमोनिया इज प्रिपेयर्ड एंड दिस सिंथेसिस इज कैरिड आउट एट 700 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर in presence of Fe2O3 means iron oxide, Al2O3 alumina and potassium oxide K2O. इस इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो अमोनिया की सिंथेसिस होती है. हाउ इट इज कैरिड आउट, हाउ दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ये डायग्राम जो दिया है, इस डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बोथ आर पास्ड फ्रॉम आउट सोर्स इन ए कंप्रेशर. यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस को हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके उसको कंप्रेशर में यहाँ पर हम पास करते हैं. मीन्स हियर दीज गैसेज आर कंप्रेस्ड. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कलेक्ट करके पहले कंप्रेस करते हैं 20 MPa पर, इतने प्रेशर पर इसको हम कंप्रेस करते हैं. एंड देन द कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इट इज पास्ड थ्रू दिस ट्यूब एंड पास्ड इन अनदर चैम्बर where temperature is kept 700 Kelvin and there are already catalysts are present which increase the rate of reaction of nitrogen and hydrogen, and then nitrogen and hydrogen react to each other to form ammonia. And here the mixture of nitrogen, hydrogen and ammonia gas, it is passed through the collection chamber where liquid ammonia is collected, NH3. This chamber where liquid ammonia is collected and the gaseous remaining gases, those are passed through this tube to the pump, and this pump pumps back the mixture of nitrogen and ammonia again to the reaction chamber and reaction is carried out. इसको थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया की सिंथेसिस जब होती है तो सबसे पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस को हम पाइप के थ्रू पास करते हैं एक चैम्बर में
जहाँ पर कि प्रेशर बहुत हाई होता है उसको कहते हैं कंप्रेशन चैम्बर। तो यहाँ पर बोथ द गैसेस, दोनों गैसेस को कंप्रेस करके उनके वॉल्यूम को मिनिमाइज किया जाता है और उनको मिक्स करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ कंप्रेशन के बाद इस मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम पास करते हैं नेक्स्ट चैम्बर में, जिसको कहते हैं रिएक्शन चैम्बर, जहाँ पर कि टेम्परेचर 700 केल्विन रखा जाता है और कैटलिस्ट लाइक Fe2O3, Al2O3 और K2O प्रेजेंट होते हैं। और फिर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। बट माइंड इट दैट दिस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वेयर देयर इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एट द सेम टाइम देयर इज decomposition of ammonia back into nitrogen and hydrogen. So that's why there is a mixture of nitrogen, hydrogen and ammonia is present here. क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक तरफ जहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वहीं पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का भी फॉर्मेशन होता है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों प्रोसीड करती रहती है उसी टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया होता है। तो आप रिएक्शन चैम्बर से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के मिक्सचर को हम पास करते हैं एक दूसरे चैम्बर में जो कि कूलिंग चैम्बर होता है। यहाँ पर कूल किया जाता है जिससे कि अमोनिया लिक्विफाई हो जाती है। और अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का जो कूलिंग पॉइंट है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से डिफरेंट होता है। अमोनिया थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे ही कूल डाउन होकर लिक्विफाई हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई होते हैं। तो इनकी लिक्विफैक्शन से बिफोर ही अमोनिया यहाँ पे लिक्विफाई हो जाती है। तो लिक्विफाइड अमोनिया को यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं एंड रिमेनिंग the mixture of gases which is of mostly nitrogen and hydrogen, it is passed back in a pumping chamber, in a pump। इस मिक्सचर को इस पंप के थ्रू फिर से रिटर्न ले आते हैं, बैक ले आते हैं और इस पंप से फिर से पंप कर दिया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को किसमें, रिएक्शन चैम्बर में। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल स्केल पर, इंडस्ट्रियल मेथड से अमोनिया के सिंथेसिस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से की जाती है। ये है इसका मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट रिएक्शन। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, मीन्स हाउ द अमोनिया इज प्रिपेयर्ड। लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द मेथड्स। नंबर 1, अमोनिया इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम यूरिया, in which urea is treated with water to form ammonium carbonate, and this ammonium carbonate on heating it decomposes into ammonia, carbon dioxide and water. So this is first method of preparation. Another method of preparation, ammonia can be prepared from ammonium salts, इसको ammonium salts से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि ammonium chloride, this is an example of ammonium salt. तो when ammonium chloride is treated with calcium hydroxide means slacked lime, यानी कि अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है, तो वो अमोनिया, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में। उसी तरह से अनदर साल्ट ऑफ अमोनियम दैट इज अमोनियम सल्फेट, NH4 twice SO4, और इसकी रिएक्शन जब कास्टिक सोडा से यानी NaOH से होती है तो ये बनाता है अमोनिया, वाटर और सोडियम सल्फेट। तो दिस इज हाउ फ्रॉम अमोनियम साल्ट्स अमोनिया इज प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन विच अमोनिया इज सिंथेसाइज फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसमें अमोनिया की सिंथेसिस कहाँ किससे होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ट्रीटेड इन स्पेसिफिक कंडीशन वेयर इन टेम्परेचर इज केप्ट 700 केल्विन, pressure is kept 200 atmospheric pressure, in presence of Fe2O3, Al2O3 and K2O, ammonia is formed, and this is a reversible process. Favorable condition for the synthesis of ammonia are that this reaction take place or synthesis take place at high pressure. तो जब हाई प्रेशर रखा जाता है तो at high pressure this synthesis take place much, and here a mixture of Al2O3 and K2O is used. यहाँ पर Al2O3 और K2O का एक मिक्सचर यूज किया जाता है। ये किस बात के लिए किया जाता है, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फॉर रैपिड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन तेजी से मेंटेन हो और रैपिड रेट ऑफ रिएक्शन हो, उसके लिए इसका मिक्सचर यूज किया जाता है। ये 30 कैटलिस्ट और सॉलिड कैटलिस्ट विच एडजॉर्ब द रिएक्टेंट्स, वो रिएक्शंस को एडजॉर्ब करते हैं और रिएक्शंस को एडजॉर्ब करके इनके एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, जिससे कि कम एनर्जी पर ही एक्टिवेट हो जाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस और इनके बीच में रिएक्शन होती है। एज यू नो दैट नाइट्रोजन इट इज इनएक्टिव, इट इज इनर्ट, ये पूरी तरह से इनर्ट होता है इन जनरल सिचुएशन। इफ वी हैव टू कैरी आउट एनी रिएक्शन फॉर नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन
इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस, इसको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में रखा जाता है तभी ये रिएक्शन होती है। देन नेक्स्ट टू इट इज प्रॉपर्टीज। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी इन विच ammonia is a colorless, pungent means very sharp odor gas. Its freezing point is 198.4 Kelvin, 198.4 Kelvin पे फ्रीज करती है। Boiling point is 239.7 Kelvin. This high freezing point and high boiling point is just because of the hydrogen bonds present in ammonia. कि हाइड्रोजन बांड होता है, यानी स्पेशली जब ये लिक्विड स्टेट में होती है, व्हेन अमोनिया इज इन लिक्विड स्टेट मींस इन डिसॉल्व इन वाटर, देन इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हाई। यानी कि एक्वस फेज में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स में प्रेजेंट होते हैं और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द शेप, तो इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये क्या है, एक ट्राइगोन का शेप बना रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बना रहा है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर मींस बहुत आसानी से वाटर में डिसॉल्व होती है ये। एंड इन एक्वस सोल्यूशन इट इज बेसिक, यानी कि जब ये एक्वस सोल्यूशन बनाती है तो ये बेसिक नेचर शो करता है, यानी बेस का फॉर्मेशन करता है। दिस इज हाउ अमोनिया व्हेन डिसॉल्व विद वाटर इट रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल एंड फोर्सेस वाटर टू लूज H+ आयन, यानी कि क्योंकि ये बेसिक है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, दिस इज वाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बेसिक नेचर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट एक्ट्स एज ए बेस, इट इज अ लुईस बेस। ये लुईस बेस होता है कि ये लोन पेयर डोनर है, तो सब्सटेंसेस विच आर लोन पेयर डोनर दोज आर कॉल्ड लुईस बेस एंड विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोज आर कॉल्ड लुईस एसिड्स। तो क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पीसीज को डोनेट कर सकता है, तो इस तरह से ये लुईस बेस की तरह फंक्शन करता है, ये लुईस बेस की प्रॉपर्टी शो करता है। और वही प्रॉपर्टी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है कि जब अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, तो ये हाइड्रोजन को एक H+ आयन रिलीज करने के लिए फोर्स करता है और उस H+ आयन को ये लोन पेयर डोनेट करके अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है NH4+ और साथ साथ OH- आयन का फॉर्मेशन होता है। और जिस किसी भी सोल्यूशन में OH- आयन प्रेजेंट होते हैं तो यू नो इट वेरी वेल, इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस भी सोल्यूशन में OH- आयन प्रेजेंट हैं वो क्या होता है, वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो दिस इज वाई इट इज बेसिक, इट शोज बेसिक प्रॉपर्टी इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि अमोनिया बेसिक सोल्यूशन में एक्वस प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये लुईस बेस की तरह एक्ट करती है, लुईस बेस की तरह बिहेव करती है, यानी कि इस अमोनिया मॉलिक्यूल में ये एबिलिटी होती है कि वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके किसी स्पीसीज को। और वही प्रॉपर्टी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है कि जब अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है और OH- आयन बनता है और इसी OH- आयन की वजह से इसकी बेसिक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड द केमिकल प्रॉपर्टी, बट बिफोर दैट क्विक रिकैप, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की कि अमोनिया एक कलरलेस गैस है, पंजेंट ऑर्डर है, बहुत शार्प ऑर्डर गैस होती है, फ्रीजिंग पॉइंट 198.4 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन। और ये हाई फ्रीजिंग पॉइंट या हाई बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है अमोनिया के केस में भी, और इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हाई होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है कि ऐसे सभी स्पीसीज जिनकी मेल्टिंग पॉइंट यानी जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होता है, यानी जितना कि उनके मॉलिक्यूलर मास से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। वही बात अमोनिया के साथ भी है कि अगर अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इसका मीन्स MW मॉलिक्यूलर वेट, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14
atomic mass of nitrogen is 14 and the same of hydrogen, there are 3 hydrogen atom, so 3 into 1 is equal to 3, तो there is 17 यूनिट, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट सिर्फ 17 यूनिट आ रहा है, लेकिन 17 यूनिट मॉलिक्यूलर वेट होने के बाद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना हाई है, उसके पीछे रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल होता है और ये डिस्टार्शन किस वजह से होता है, क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और उस लोन पेयर की वजह से तीनों बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हाईली सॉल्युबल इन वाटर और बेसिक सोल्यूशन यानी एक्वस सोल्यूशन में बेसिक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करता है, और उसके पीछे की रिएक्शन ये है कि अमोनिया के पास जो लोन पेयर है उसी लोन पेयर की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल को प्रोटॉन रिलीज करने के लिए फोर्स करता है और उसके रिजल्टिंग NH4+ यानी अमोनियम आयन और OH- आयन सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स एज वी हैव डिस्कस जस्ट बिफोर। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये लुईस बेस की प्रॉपर्टी यानी बेसिक प्रॉपर्टी इसमें है तो नेचुरली ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, और वही चीजें यहाँ पे होती है कि अमोनिया इन एक्वस व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl देन फॉर्म अमोनियम क्लोराइड साल्ट, फिर ये NH4Cl का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक उसी तरह से अमोनिया की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से होती है H2SO4 से, तो ये फॉर्मेशन करता है क्या, NH4 twice SO4 मीन्स NH3 + 2H2SO4 इज इक्वल टू NH4 twice SO4। इस अमोनिया की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है तो अमोनियम क्लोराइड, और अमोनिया की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से होती है तो अमोनियम सल्फेट साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया एंड रिएक्शन विद एसिड्स, यानी क्योंकि ये बेस है तो एसिड से रिएक्शन होगी, और जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो आप नेचुरल है, आप जानते हैं कि साल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल साल्ट्स। ये भी वही है कि क्योंकि ये मेटल के साल्ट के साथ भी रिएक्शन करेगा, जैसे जिंक सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब होती है, यानी कि अमोनिया जब एक्वस सॉल्यूशन में होगी तो क्या बनाएगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का फॉर्मेशन करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, और जब जिंक सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है तो बनाता है ये जिंक हाइड्रोक्साइड, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पे होती है, जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और उसके साथ साथ अमोनियम सल्फेट साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरह से फेरिक क्लोराइड के साथ जब अमोनिया की रिएक्शन होती है एक्वस सॉल्यूशन में, और एक्वस सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि ये क्या बना लेता है, NH4OH बनाता है, तो जब एक्वस अमोनिया की रिएक्शन फेरिक क्लोराइड के साथ होती है तो ये बनाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, और साथ साथ अमोनियम क्लोराइड। मींस जब अमोनिया की एक्वस अमोनिया की रिएक्शन किसी भी मेटालिक साल्ट से होती है, जैसे कि जिंक सल्फेट या फेरिक क्लोराइड जैसे साल्ट से होती है, तो ये फॉर्मेशन करता है प्रेसिपिटेट का। मीन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कि व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद मेटालिक साल्ट्स देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर्स एंड वेयर करस्पॉन्डिंग मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स आर प्रेसिपिटेड। यहाँ पे क्या प्रेसिपिटेट हो रहा है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड प्रेसिपिटेट होते हैं। जैसे कि जिंक सल्फेट की रिएक्शन जब एक्वस अमोनिया से होती है तो जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो रहा है, और जब फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से हो रही है एक्वस अमोनिया से तो फेरिक ऑक्साइड प्रेसिपिटेट होता है। फेरिक ऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड का कलर व्हाइट होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है अमोनिया की रिएक्शन विद मेटल आयंस, यानी अमोनिया की रिएक्शन मेटल आयन से भी होती है, और दिस इज वेरी यूजफुल इन डिटेक्टिंग द काइंड ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, यानी किसी भी सोल्यूशन में कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, कौन सी मेटल प्रेजेंट है, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए, मेटल आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। बिकॉज अमोनिया गिव्स डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट मेटालिक आयंस, यानी कि जब अमोनिया की रिएक्शन मेटल आयन से होती है तो फिर ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वहाँ पर भी देता है, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। मीन्स अमोनिया कंबाइन विद मेटालिक आयंस टू फॉर्म अमोनिया एंड मेटल कॉम्प्लेक्स,
and which are formed as precipitates. As for example, when it reacts with copper ion Cu2 plus, when ammonia is treated with copper ion, then it forms copper tetraamine which is deep blue in color. In general situation जहाँ पे copper ions present होते हैं वहाँ पे कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है. Color of copper ions is blue color, but when copper ions react with ammonia and form copper tetraamine, so this is a deep blue precipitate. तो formation of deep blue color or appearance of deep blue color, this indicates about the presence of copper ion. In the same way, reaction with silver ions, and when combined with chloride, it forms silver chloride AgCl, which is white precipitate. And when this AgCl is treated with aqueous ammonia, यानी सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन जब एक्वस अमोनिया के साथ होती है तो ये बनाता है अमोनिया क्लोराइड और सिल्वर का कॉम्प्लेक्स जो कि कलरलेस होता है. तो अमोनिया सिल्वर क्लोराइड, दिस इज व्हाइट precipitate, white in color, but when it reacts with ammonia, so after reaction with ammonia, it forms a colorless precipitate. तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब अमोनिया के रिएक्शन मेटालिक आयन से होती है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट ऑफ डिफरेंट कलर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट कलर देता है. जैसे कि कॉपर आयन के साथ रिएक्शन जब अमोनिया की होती है तो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड, जहाँ पर कि सिल्वर आयन प्रेजेंट है, जब इसकी रिएक्शन अमोनिया से होती है तो सिल्वर क्लोराइड का कलर पहले वाइट प्रेसिपिटेट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद ये क्या बना लेता है? कलरलेस प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है. अगर हम बात करें यूजेस की, तो यूजेस में फर्स्ट यूज है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जैसे कि अमोनियम सल्फेट या फिर अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, इस तरह के नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की सिंथेसिस जब होती है तो उसमें अमोनिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है, मीन्स अमोनिया का यूज होता है. एंड साइड बाय साइड इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पर भी अमोनिया का यूज होता है. अमोनिया से नाइट्रिक एसिड की सिंथेसिस होती है. एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एज रेफ्रिजरेंट. लिक्विड अमोनिया का यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, जो कि कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. तो दिस इज अबाउट द कंपाउंड अमोनिया विच इज कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि अमोनिया, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट, प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके साथ साथ यूजेस के बारे में देखा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड और उसकी प्रॉपर्टी